Assalamu alaikum dear students. This is class for molecular biology, evening biot, and we will be discussing the applications of DNA hybridization in our scientific and everyday life. The very first application we are going to discuss is PCR, which is polymerase chain reaction. The second one will be probe hybridization, and the third one microchip, which is also known as microarrays, and then comes fish. Fish is essentially fluorescence in situ hybridization. In situ means in real situation, मतलब उस वक्त particularly क्या हो रहा है. So DNA hybridization PCR में कैसे utilize होता है? When we anneal the primer with our template DNA. आपको पता है ना कि template DNA double stranded होता है. But in the first step of PCR we make it denature ताकि वो single stranded हो जाए और उसके बाद हम primers को उसके साथ anneal कराते हैं. So we make a hybrid over there, and then based on that hybrid our DNA polymerase enzyme then start incorporating nucleotide as per the template direction. Probe hybridization is of many types. Like there are three types which are being used: northern hybridization, southern hybridization, and western hybridization. In this, southern hybridization or blotting is the DNA-DNA hybridization, whereas northern is DNA-RNA hybridization. And when we talk about the western blotting, it is about protein hybridization. And the microchips and microarrays are the actually very multiplex sort of a thing in which we put millions of DNA fragments on a very small chip, and then we can analyze or screen all of them at a single time at a given time. So in PCR chain reaction we will be in need of DNA sample जिसको हमने amplify करना है, the primers which will anneal to our DNA samples. So they are sequence driven, they are sequence specific, they are highly unique. We design them in a way कि सिर्फ एक हमारे particular target DNA के अलावा किसी और जगह पे bind ना करें और successful amplification ना दें until or unless वो हमारे specific DNA के साथ bind हुए हों. Then the nucleotides, if we are doing the DNA amplification, then we will be using deoxyribonucleotides, and if we are doing the RNA one तो हमें ribonucleotides की ज़रूरत पड़ती है. But जो हमारे पास standard protocols हैं, they are all for the DNA amplification. That's why we use deoxyribonucleotides. We also call them as DNTPs, abbreviation उसकी. Then we need the Taq polymerase, because this is the key enzyme which will amplify the region of our interest. But it has an inherent problem. The inherent problem is कि ये खुद से de novo process of amplification या replication start नहीं कर सकता. So इसको एक छोटे से प्राइमर की ज़रूरत होती है जिसके 3 प्राइम एंड पर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सके. देखिए मैंने एम्फेसाइज किया 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड. अगर 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल मौजूद नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है, तो तब भी ये एक डेड एंड होगा और इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज फर्दर इनकॉर्पोरेशन नहीं कर सकेगा न्यूक्लियोटाइड्स की. Then we also need a buffer. The buffer is mandatory because it enables our Taq polymerase to work in a particular environment. And all of this mixture will be set up in a PCR tube. PCR tube essentially एक प्लास्टिक की सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की तरह ही होती है और प्लास्टिक की ही बनी हुई होती है. बट दिस प्लास्टिक इज़ ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक, सो दैट जब आप इसको थर्मोसाइक्लर में रखें तो वो डिग्रेड ना हो जाए, डिफॉर्म ना हो जाए. और इसके अलावा ये डीएनएस आरएनएस फ्री होती है, सो दैट हमारे जो डीएनए या आरएनए जिसको भी हमने ऐड किया है इनटू आवर पीसीआर कॉकटेल वो डिग्रेड ना हो जाए. ठीक हो गया. बॉटम पे आप थर्मोसाइक्लर देख रहे हैं. थर्मोसाइक्लर वो मशीन है जिसके बीच में हम इस ट्यूब को आफ्टर मिक्सिंग आवर कॉकटेल ऐड करके रखते हैं और टेम्परेचर्स को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंगली. द प्रोसेस इज 3 स्टेप प्रोसेस जिसमें आप देख सकते हैं denaturation, annealing and extension. Denaturation is done at high temperatures. 94 से लेके 96 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम denaturation टेम्परेचर रखते हैं और इस टेम्परेचर पे जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन द 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स वो डिग्रेड हो जाते हैं और इस तरह हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है. द सेकेंड स्टेप इज़ annealing. Once the template becomes single stranded, तब हमारा जो प्राइमर है बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंटारिटी
वो जाकर इसके साथ अनील करके हाइब्रिड्स बना देगा। और अब इस हाइब्रिड के ऊपर हमारा टैग पॉलीमरेज काम करेगा ताकि वो उसको एक्सटेंशन दे सके 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब है ये मशीन पहले टेम्परेचर अप करती है 94 से लेकर 96 तक, जो प्रोग्राम आपने उसमें फीड इन किया है। फिर वो अनीलिंग पर आएगी। अनीलिंग आमतौर पे जो आपने टीएम कैलकुलेट किया होता है प्राइमर्स का, TM-5 आपको अनीलिंग टेम्परेचर देता है। और फिर आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके लाता है ताकि हमारी प्राइमर एक्सटेंशन वहाँ पे हो सके और एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ सके। आप इस पर्टिकुलर स्लाइड पे देख सकते हो कि इसमें हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है 3' हाइड्रोक्सिल के ऊपर जो आपको दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली द वंस जो कि हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं ऑन द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स अल्फा फॉस्फेट ग्रुप। और इस अटैक के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होती है और इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन के नतीजे में हमारे अल्फ़ा और बीटा फॉस्फोराइल ग्रुप के बीच में मौजूद फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और हमारे पास बीटा और गैमा फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं। ठीक हो गया। और ये प्रोसेस इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नोटेड एट ईच स्टेप इज़ कि हमारे पास जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड आए वो कॉम्प्लीमेंट्री हो टू द एग्जिस्टिंग चेन। विद दिस